Namaste. This is yet another episode, and today we shall be talking about An Evening in Paris, as I told you in the last episode. So today, this is all about another Shankar Jaikishan movie from the 60s, whose Angel record is quite in demand these days. A lot of people are looking for it, but it's getting difficult day by day to get a decent copy. I had a couple of them, around 3 or 4 till last year, but I am now left with just one copy. So, something about An Evening in Paris, I think I don't need to tell you much about it. It was a multi-star cast movie of the 60s, a movie written by Sachin Bhaumik, directed by Shakti Samanta. Music department was taken care of by Shankar Jaikishan with Hasrat and Shailendra as the lyricists. It had all the masala to make it a box office success in those days. There was a helicopter on which the hero was singing songs. Let go fine from there, and then you had Sharmila ji in the bikini. So सारी चीज़ें अपने वक्त के हिसाब से काफ़ी एडवांस थी. पेरिस की लोकेशन थी, शानदार मूवी थी, और किसी भी टाइटल ट्रैक के लिए आपको पता ही है कि शंकर जयकिशन से बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता. तो जो मूवी का नाम होता था उसको वो अपने टाइटल ट्रैक में डाल के इतना ज़बरदस्त बनाते थे, चाहे लव इन टोक्यो हो या एन इवनिंग इन पेरिस हो. तो एक बार मैं आपको इसका रिकॉर्ड दिखाता हूँ, रिकॉर्ड जैकेट, एंड वी कैन डिस्कस अराउंड द सॉन्ग्स, द डिस्क, द रिकॉर्डिंग क्वालिटी ऑफ द रिकॉर्ड. बाकी सारी बातें तब करते हैं. दिस इज द कवर ऑफ एन इवनिंग इन पेरिस. दिस इज माई लास्ट कॉपी दैट आई हैव नाउ विद मी. This is the reverse side. The copy is practically new. This was just there as a backup since the days I bought it mint. और ये रहा उसका रिकॉर्ड. I don't know whether you can make it from there or not, but the record is new by all means. The number is 3AEX5144, produced in 1967. Matrix number is 2XJE1063 and 1064. So this same matrix, this same lacquer was used to make the MOCE series record on Odeon label also. उसका नंबर था MOCE1125. मैंने ये रिकॉर्ड खरीदा, कई बार खरीदा. आई वॉज ऑलवेज ऑफ द ओपिनियन कि इतने ग्रेट साउंड ट्रैक की रिकॉर्डिंग बहुत कमाल की होगी, बट सैडली दिस रिकॉर्डिंग वॉज नॉट अप टू द मार्क. देन आई वेंट टू ओडियन. ओडियन भी वैसा ही है, नथिंग ग्रेट. और रेड लेवल में भी रिकॉर्ड बना था एन इवनिंग इन पेरिस का, जिसमें वो जो डॉगी है उसका कलर रेड था. तो उसको जनरल बोलचाल की भाषा में कहते हैं लाल कुत्ते वाला रिकॉर्ड. तो उसको जनरली कुछ लोग सुपीरियर मानते हैं रादर देन द रूटीन वाइट लेवल डॉग. वो भी है, बाद का जो वाइट लेवल है वो भी है, बट नन ऑफ द प्रेसिंग्स कुड डू जस्टिस. देन आई बॉट दैट EMI CD जो लव इन टोक्यो के साथ बनाई गई थी लंदन में. वो भी बस ऐसी ही है, मतलब जितने गजब के गाने इसके थे उतनी कमाल की क्वालिटी उन्होंने किसी भी मतलब इसमें रिलीज नहीं किया. तो चाहे रिकॉर्ड आप, हाँ, बट you cannot say that it is bad. All I'm saying is that you are left, craving for more from the quality point of view. So good to have this soundtrack, but leaves a lot to desire. और songs तो क्या कहने हैं, songs तो कमाल के थे. The first song, An Evening in Paris, the title track was written by Hasrat Jaipuri. An Evening in Paris. I did not tell you about it because we have listened to these songs so many times that they are etched in our memories. एक एक ट्यून, एक एक नोट, एक एक उठाओ गिराओ सब आपको याद होगा. और दूसरा गाना था अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो. This was again by Hasrat Jaipuri. sung by mighty Mohammad Rafi in those days. थर्ड जो गाना था और फोर्थ जो गाना था, ये दो शैलेंद्र ने लिखा था फर्स्ट साइड का.
दीवाने का नाम तो पूछो, दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो। एंड रात के हम सफर थक के घर को चले। Very haunting kind of song. It's a duet by Mohammed Rafi and Asha Bhosle, written by Shailen. This song is something the one that I like the most on side A. Very nice song, very beautiful lyrics and very nice tune. Side 2 is again the song, the iconic song, वो helicopter से लटक के when you know Shammi Kapoor singing it in the night suit. I think it was a bathrobe or something. आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने, कहो प्यार है तुमसे ना ना. That part was very funny and I liked it quite a lot. And then you have got the second song, which I believe is nothing but a filler, Zubi Zubi Jalembu. I don't know why they had to write such kind of songs. Hasrat Jaipuri. Then the last two songs are again by Shailen. होगा तुमसे कल भी सामना, शैलेंद्र ने लिखा है, कोई खास गाना नहीं है, ठीक ठाक सही है. ले जा मेरा दिल, शारदा. Sharda was someone who had to sing in these multi-star cast movies. She was pretty close to Shankar Ji. शंकर जी के काफ़ी नज़दीक थी वो, काफ़ी प्रभावित भी रहती थी. और बाद में जो फिल्में शारदा जी ने बनाई जिसमें उन्होंने म्यूज़िक दिया, उसमें मुझे पूरा यकीन है विदाउट बीइंग डिप्लोमेटिक कि सारी ट्यून्स मोर और लेस शंकर जी की ही थी जो उन्होंने यूज़ की बाद में. तो और आखिरी गाना है मेरा दिल है तेरा, तेरा दिल है मेरा, जब से हमने दिल बदले सारा जग बदला, शैलेंद्र. सो ऑल इन ऑल सुपर्ब साउंड ट्रैक, नो डाउट. ऑर्केस्ट्रा तो शंकर जयकिशन का अनमैच था ही, और जो कुछ भी वो बना देते थे वो फिल्म को हिट करने के लिए काफ़ी था. बट फ्रॉम रिकॉर्ड कलेक्शन पर्सपेक्टिव, दिस इज वन रिकॉर्ड दैट यू मस्ट हैव इन योर कलेक्शन सिंपली बिकॉज इट वॉज अ स्पेक्टेकुलर साउंड ट्रैक. बाकी गाने की क्वालिटी का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि बहुत ग्रेट नहीं है जिसके लिए एंजल्स जाने जाते हैं. और इनफैक्ट सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो तब हुआ जब एमओसी 1125 द ओडियन प्रेस, वो भी कुछ खास नहीं था, ऐसे ही था, काफ़ी नॉइजी है वो. तो एंजल इज स्टिल बेटर बिकॉज इट इज़ अ बिट स्मूथ. So I don't have much to say about these soundtracks. Somebody had asked me in this group whether these records are available or not, but I'm sadly अभी तो बहुत दिनों से कोई अच्छी कॉपी दिखी नहीं है. And that leaves us to the end of the show. Next episode, let us talk about Abhinetri. That was one great soundtrack by Lakshmikant Pyarelal, Shashi Kapoor and हेमा मालिनी. तो उसकी बात करेंगे 1-2 दिनों के अंदर. तब तक आप इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करिए, इसके गाने सुनिए, रिफ्रेश योर मेमोरीज. एंड दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इन दिस मॉनसून्स एंड इन दिस ट्राइंग टाइम्स. सो टिल वी मीट अगेन, नमस्ते.